Hello students, welcome to the channel SNW Physics Classes. If you really understand the concepts taught here, please turn the black thumb blue. That means like the video, share with your friends and subscribe to the channel SNW Physics Classes. Do not forget to hit the bell icon for the latest updates. Stay connected with me on Facebook, Instagram, or you can write using my Gmail ID. Links are given in the description. This is the series of HC Verma Solution, class 9th Physics, and in this video we are going to deal the question number 15 to 21 of chapter 2, that is force and laws of motion. Question number 15 says that two particles A and B of mass 10 gram and 20 gram respectively falls vertically. ठीक है, यहाँ पे दो पार्टिकल्स है, पार्टिकल A एंड पार्टिकल B. पार्टिकल A का जो मास है दैट इज 10 ग्राम एंड पार्टिकल B का जो मास है दैट इज 20 ग्राम. ओके, दे आर फॉलिंग वर्टिकली. ठीक है, दे आर फॉलिंग वर्टिकली, वो नीचे फॉल कर रहे हैं. At a given time, the speed of particle A is 12 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो पार्टिकल A की स्पीड है दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड एंड दैट ऑफ B इज 15 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और B की जो स्पीड है किसी पर्टिकुलर टाइम पे दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड. सो वी हैव टू फाइंड द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स. ठीक है, दोनों जो पार्टिकल्स है उसके टोटल लीनियर मोमेंटम को हम लोगों को फाइंड आउट करना है. So let us see the solution. Mass of particle A is 10 gram. We will convert it into kg. ठीक है, ग्राम को kg में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं and we will get 0.010 kg. Okay, and velocity of particle A is 12 meter per second. Now we will calculate the momentum of first particle, that is mass into velocity. Momentum is equal to mass into velocity. So mass of the first particle A is that is 0.010 kg and velocity is 12 meter per second. On multiplying it we get 0.12 kg meter per second. ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्टिकल है, जो पार्टिकल A है, उसका मोमेंटम हो गया 0.12 kg मीटर पर सेकेंड. ओके, मास ऑफ पार्टिकल B इज 20 ग्राम. ठीक है, उसे फिर हम लोग kg में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग इट विथ 1000. So 0.020 kg is the mass of second particle and its velocity is 15 meter per second. So the momentum again we will calculate by mass into velocity. So mass is 0.02 kg into 15 meter per second and on multiplying it we will get 0.3 kg meter per second. दूसरे जो पार्टिकल है उसकी मोमेंटम आ गई 0.3 kg meter per second. So to find out the total momentum of the system of two particles, we will add both the momentum. ठीक है, ये जो दोनों वैल्यूज हम लोगों को अभी मिली उन दोनों को ऐड कर देंगे. So the total momentum of the system is 0.12 kg meter per second plus 0.3 kg meter per second. On adding it we get 0.42 kg meter per second downward. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, ये जो पार्टिकल है ये नीचे फॉल हो रही है, फ्री फॉल हो रहा है, वर्टिकली नीचे आ रही है, तो मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. क्वेश्चन नंबर 16. टू बॉडीज A and B, लेट इट बी A and this one be B. दो बॉडी है A और B ऑफ masses 150 ग्राम एंड 250 ग्राम. ठीक है, पहले वाले जो बॉडी है उसकी मास जो है वो 150 ग्राम है और दूसरी वाली जो बॉडी है उसकी मास जो है वो 250 ग्राम है. रेस्पेक्टिवली आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर. दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे. बोथ पार्टिकल्स हैव अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड. दोनों की जो स्पीड है दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ द टू पार्टिकल्स. अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है व्हाट इज द total linear momentum of the system of these two particles. Okay, mass of A is 150 gram. Again we will convert it into kg. ठीक है, 150 ग्राम को हम लोग kg में कन्वर्ट करेंगे, then we will get 0.15 kg. Mass of particle B that is 250 gram. We will convert it into kg. We will get 0.25 kg. Let the velocity of A be negative and velocity of B be positive. ठीक है,
ए की वेलोसिटी को हम लोग नेगेटिव ले रहे हैं और बी की वेलोसिटी को हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, ओके। क्योंकि दोनों एक दूसरे के दोनों एक दूसरे की ओर जो है अप्रोच कर रहे हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। तो इसकी वेलोसिटी, फर्स्ट की वेलोसिटी हम लोग नेगेटिव ले लेंगे और दूसरे वाले की पॉजिटिव ले लेंगे, बिकॉज इफ वी कंसीडर डायरेक्शन तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। The velocity of A is minus 3 meter per second and velocity of B is plus 3 meter per second. Now the total linear momentum will be product of their mass and velocities. So first की जो product of mass and velocity, mass is 0.15 and velocity is minus 3 meter per second. We will add the mass into velocity with second one. दूसरे की जो mass और velocity है उसके product से add कर देंगे। तो दूसरी वाली body जो B body है उसकी mass जो है that is 0.25 kg and it is approaching with the velocity of 3 meter per second. After calculating this, we will get 0.30 kg meter per second. Thus, the magnitude of total linear momentum of the system of two particles is 0.30 kg meter per second. Question number 17 says that a boy weighing 30 kg is riding a bicycle weighing 50 kg. ओके, एक लड़का है जिसका वेट जो है वो 30 kg है और वो बाईसाइकिल जिस बाईसाइकिल को राइड कर रहा है उसकी वेट जो है वो 50 kg है। इफ द बाईसाइकिल इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, अगर बाईसाइकिल जो है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द लीनियर मोमेंटम ऑफ बाइसाइकिल बॉय सिस्टम इन एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट में हम लोगों को इस पूरे सिस्टम का फाइंड आउट करना है लीनियर मोमेंटम, ओके। सो देयर आर टू बॉडीज, बॉय एंड बाइसाइकिल। सो वेट ऑफ बाइसाइकिल इज 50 kg, वेट ऑफ बॉय इज 30 kg। बॉय का जो वेट है दैट इज 30 kg और जो बाइसाइकिल पे, जिस बाइसाइकिल पे वो राइड कर रहा है उसकी जो वेट है दैट इज 50 kg। नाउ द टोटल वेट विल बी, पूरे सिस्टम का जो वेट हो जाएगा वो 80 kg हो जाएगा, ओके। नाउ स्पीड इज 9 किलोमीटर पर आवर, वी विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड कन्वर्जन जो है वो मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो थ्रू इट। Speed is equal to 9 km per hour. We will convert it into meter per second, 2.5 meter per second. Okay. Now, the total linear momentum of the system is P is equal to mass into velocity. Okay, mass is 80 kg and speed is, velocity is, that is 2.5 meter per second. So, the total momentum of the bicycle boy system in SI unit is 200 kg meter per second, ठीक है। SI unit है, that's why we have converted kilometer per hour to meter per second. Question number 18, a block of mass 120 gram moves with the speed of 6 meter per second. एक ब्लॉक है जिसका मास जो है that is 120 gram. Let us consider here a block whose mass is 120 gram, ठीक है, ओके। Moves with a speed of 6 meter per second on frictionless horizontal surface toward another block of mass 180 kg. एक और ब्लॉक है जिसका मास जो है वो 180 kg है और ये ब्लॉक जो है उस 180 ग्राम का जो ब्लॉक है उसकी तरफ ये आगे बढ़ रहा है, ओके। दे कोलाइड एट फर्स्ट ब्लॉक स्टॉप, ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जैसे ही वो कोलाइड किया तो पहला वाला जो ब्लॉक है वो रुक गया। फाइंड द स्पीड ऑफ अदर ब्लॉक आफ्टर कोलिजन, ओके, ये तो रुक गया। तो दूसरा जो ब्लॉक है उसको कोलाइड करने पे जो उसकी स्पीड हुई वो हमें फाइंड आउट करना है, ओके। मास ऑफ फर्स्ट ब्लॉक दैट इज m1, तो हो जाएगा 120 ग्राम। Speed of first block that is 6 meter per second. Again, mass of second block that is 180 gram. Now we have to find out the velocity of second block. ठीक है, दूसरे ब्लॉक की जो वेलोसिटी है उसे हमें फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2, ठीक है। यहाँ u और v जो है इनिशियल है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द
block. Okay, M1 is 120 gram, U1 is 6 मीटर पर सेकेंड. अगेन ये जो ऑब्जेक्ट है ये फाइनली क्या हो रहा है, रुक जा रहा है. सो 180 ग्राम. अभी जो है हमारा जो पार्टिकल बी है, ऑब्जेक्ट जो ब्लॉक बी है, वो क्या है, वो अभी रेस्ट पे है. फर्स्ट केस में इनिशियली वो रेस्ट पे है, तो U2 कितना हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा. ओके, नाउ M1 V1. V1 मीन्स फाइनली जो है ये फर्स्ट ब्लॉक जो है वो रुक जा रही है. ओके, फर्स्ट ब्लॉक जब रुक जाएगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 प्लस 180 ग्राम इंटू V2. बिकॉज इससे जाकर के जब ये कोलाइड कर रही है, टकरा रही है, तो ये जो है वो आगे विथ वेलोसिटी V2 बढ़ गया. बट पहले वाला जो है ये तो रुक गया. ओके, नाउ V2 हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे 120 इंटू 6 यानी ये वाला टर्म, ओके, डिवाइडेड बाय 180, वी गेट 4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, हम लोगों को इसको कैलकुलेट करने पे मिलेगा 4 मीटर पर सेकेंड. कैसे इसे कैलकुलेट कर देते हैं, 630 टाइम्स में ये चला जाएगा, this zero cancelled. Now we will divide 12 by 3, so we will get the answer 4 मीटर पर सेकेंड. तो जो सेकेंड ब्लॉक है वो फर्स्ट ब्लॉक के कोलिजन के बाद 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ेगा. So we can say that the speed of the other block after collision is 4 meter per second. Question number 19. A ball of mass 100 gram and another ball of 120 gram move towards each other with speed of 6 meter per second and 5 meter per second. ठीक है, दो बॉल है, दोनों के मासेस जो है वो डिफरेंट है. फर्स्ट वन की मास है 100 ग्राम, सेकेंड वन की जो मास है, सेकेंड जो बॉल है उसका जो मास है दैट इज 120 ग्राम. दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं. ओके, द स्पीड ऑफ फर्स्ट वन इज 6 मीटर पर सेकेंड and speed of second one is 5 meter per second. If they stick to each other after colliding, what would be the velocity of combined mass after the collision? ठीक है, अगर एक दूसरे से वो जाकर के स्टिक हो जा रहे हैं, चिपक जा रहे हैं, तो उसका जो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन और उसका जो कंबाइंड मास होगा उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा. ठीक है, assuming the positive direction on right and negative direction on left. Again we will assume that it is moving with positive velocity and it is moving with negative velocity. Mass of ball going toward right is 100 gram, तो इसे हम kg में कन्वर्ट करेंगे 0.1 kg. Velocity of ball going to right is 6 meter per second. So the mass of ball going to left, okay, second mass जो है that is 120 gram, we will convert it into kg, that is 0.12 kg. So velocity of ball going towards left will be minus, ठीक है, second one को हम लोगों ने minus consider किया है, -5 meter per second. Let v dash be the velocity of combination after collision. ठीक है, चलो हम लोग मान लेते हैं कि v dash is the velocity of combination. Using conservation law of linear momentum, we will calculate it. M is the mass of first ball, mv plus capital MV is equal to combined जो हमारा mass है that is mass of first ball and mass of second ball plus इसे common लेकर के हम लोग v dash that is the velocity of combination. Okay, m that is 0.1 kg into 6. Second जो ball है that is of mass 0.12 kg into -5 meter per second. Okay, 0.1 plus 0.12 into V naught. Then after calculating this, we get V dash is equal to 0 meter per second. ठीक है, तो combine जब हो जाएगा ये, तो both the ball will come at rest. ठीक है, जब ये combine हो जाएगा तो दोनों ball जो है वो rest पे आ जाएगा. Question number 20.
A cart of mass 50 kg is moving on a straight track with speed of 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एक कार्ट ड्रॉ कर लिया है जिसका मास जो है 50 kg है और वो एक स्ट्रेट रोड पे, स्ट्रेट ट्रैक पे मूव कर रहा है, दैट इज विद वेलोसिटी स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। A mass of 10 kg is gently put into the cart. Okay, बिना कार्ट के वेलोसिटी को डिस्टर्ब किए हुए 10 kg का मास जो है इसमें रखा गया। What will be the velocity of cart after this? ठीक है, अब इस मास को उस कार्ट में रखने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? Mass of cart is 50 kg. Initially, its velocity was 12 meter per second, and again a mass of 10 kg is put into the cart. ठीक है, पहले जो मास था दैट इज 50 kg और उसकी वेलोसिटी जो कार्ट की थी दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। नाउ 10 kg का और मास उसमें रख दिया गया। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कार्ट आफ्टर दैट। 10 kg मास रखने के बाद उस कार्ट की वेलोसिटी में क्या चेंजेस आएंगे, लेट अस सी हियर। सो m1 is 50 kg, u1 is 12 मीटर पर सेकेंड, m2 यहाँ पे 60 हम लोगों ने लिया है बिकॉज पहले जो था मास उस कार्ट का दैट इज 50 kg और उसमें हम लोगों ने 10 kg का मास और ऐड कर दिया, तो 50 plus 10 will be 60 kg. Okay, into v2 is equal to 50 into 12 divided by 60. तो जो 10 kg का मास उस कार्ट में रखा हम लोगों ने, उसके बाद जो वेलोसिटी हो जाएगी दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली वो कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा था, 12 मीटर पर सेकेंड से, और जब हम लोगों ने 10 kg का मास उसमें रख दिया तो उसकी वेलोसिटी कम हो गई 2 मीटर पर सेकेंड से, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी कार्ट की दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। दैट्स द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार्ट इज 10 मीटर पर सेकेंड। Question number 21. A force of 12 Newton is uniformly distributed over an area of 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फोर्स जो है कितना अप्लाई किया गया है, 12 न्यूटन का, और कितना एरिया है, कितने एरिया में 12 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, दैट इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ फोर्स इज इक्वल टू 12 न्यूटन, प्रेशर इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, वी विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, 100 into 100 से इसे डिवाइड करके और हम लोग मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। 0.0120 मीटर स्क्वायर ये एरिया हो गया जिसपे हम लोगों ने 12 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है। नाउ प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, so 12 by 0.0120 Pascal will be the pressure, and after calculating this we will get 1000 Pascal. Thus the pressure exerted by that force is 1000 Pascal.